Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक, और ये ताकत बनती है हमारे सैनिकों से, उनके दिल में जोश और देश के लिए समर्पण से। यही हमारी ताकत है। दुश्मन को माफ करना ऊपर वाले के हाथ में है, और उन दोनों की मुलाकात करवाना इंडियन आर्मी अपनी ड्यूटी समझता है, और ये तुरंत करता है इंडियन आर्मी। और इसी मिशन में या तो फौजी तिरंगा फहरा कर आता है या फिर उसमें लिपट के। भारतीय फौज का यही जज्बा उसे सबसे अलग और सबसे दिलेर बनाता है। देश की सेवा में हर पल जीना, यही भारतीय सेना की सच्ची पहचान है। क्योंकि वो युद्ध नहीं हारता जो अपने देश के लिए लड़ता है, वो जीतता है जो अपने देश के लिए मरता है। और इसी कारण भारतीय सेना के सैनिक हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और सेना हमें यही सिखाती है कि जब तक हम जीते हैं तब तक संघर्ष करो, और जब तक हम मरे नहीं तब तक लड़ते रहो। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर दुनिया की सबसे मुश्किल रिवर टेरेन में हुआ था। नदी, नाले, जंगल, झाड़ियां, इन सभी को पार तो करना था ही, उसके बाद दुश्मन को भी हराना था। हालात ऐसे बन पड़े थे कि पश्चिमी देशों से भी दबाव था, और उसमें से ज्यादातर युद्ध के खिलाफ ही थे और दुश्मन की बात को ही सही कह रहे थे। युद्ध की पहली चिंगारी जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही युद्ध का बैरिटोन सेट करती है। आज के गट्स एंड ग्लोरी में जो हमारे साथ हैं वो हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेडियर BK पॉनवर, जिनको कमीशन किया गया था 1 मराठा लाइट इन्फेंट्री जंगी पलटन में दिसंबर 1969 में। 1971 के इस युद्ध में इन्हीं की टुकड़ी सबसे पहले ढाका एंटर की थी, या यूं कहें कि इन्होंने युद्ध की राह आगे बढ़ाई थी। कैसे शुरुआत हुई थी ये सारी चीजें, और क्या हुआ इनके मिशन का अंजाम, सुनेंगे AVSM VSM ब्रिगेडियर BK पॉनवर से थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. गट्स एंड ग्लोरी के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेडियर BK पॉनवर। पहली भारतीय टुकड़ी जो कि ढाका में एंटर की थी, उसका हिस्सा और किस्सा थे ये। तो क्या थी ब्रीफिंग और क्या था मिशन? It was on 25th March 1971 that I was in Nagaland in a division headquarters where we got information East Pakistan forces, the army of Pakistan, started going against the Awami League and started sorting them out. This carried on, which resulted in a number of refugees. The refugees from East Pakistan, the local Bengalis, started coming into our country from all directions. As a result, over 10 million refugees piled up. The diplomatic talks going on across the world. Our Honorable Prime Minister, Madam Indira Gandhi, was asking the countries to restore situation. We'll go about 40 kilometers up to the river line, put the refugees back. And that kind of preparation went on. And the local population were all with us. A very, very great advantage to the Indian Army that the local population was with us. Mukti Bahini was trained and Mukti Bahini was with us. We trained the Mukti Bahini forces. They should tell us where the Pakistanis are, where the roads are, where the bridges are, and so on and so forth. 13 दिनों के इस युद्ध में इनका मिशन खतरे से खाली नहीं था। So we prepared ourselves, the whole battalion got ready. We prepared for a deep infiltration. We were on such a situation that we were to go deep inside about 45 kilometers to strategic town of Jamalpur. That is what our brigade, 95 Brigade, was told to go and surround and destroy, because that was the place from where the route to Dhaka and the paradrop was to take place in this sector. It was the thrust from the north. 3rd December night, while Madam Prime Minister was addressing the nation from Calcutta, and when she came to Delhi,
we were crossing the border and moved into a place called Bakshiganj, the first Pakistani position, about 15 kilometers away. Bakshiganj was surrounded. Artillery shelling started. Our brigade surrounded Bakshiganj. Their company commander, Major Ayub, he got killed in an artillery shelling. So with no leader, and since it was a screened position, the Pakistani garrison called them back to the main defenses in Jamalpur. Pakistanis had created so many theatre fortresses like Jabalpur, Maiman Singh, Khulna and all these places which were to be so positioned that they were to fight to the last man, last round. They were to be surrendered. So Jabalpur was one such theatre fortress. We went across to Bakshiganj and having surrounded that place, and since Major Ayub got killed, Bakshiganj vacated. They did not fight at all. They withdrew in the night. We just entered Bakshiganj without firing a shot. युद्ध में नदियां भी पार करनी पड़ती है और बांग्लादेश तो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रिवर लाइन ट्रेन्स में से एक थी। तो फिर इस नदी को पार कैसे किया जाए, सुनेंगे आगे गट्स एंड ग्लोरी में। स्टे ट्यून्ड। Red FM Guts and Glory, Salute 71, honoring the war heroes. 1971 में युद्ध अपने चरम सीमा पे था। सामने थी एक बड़ी लंबी विशाल नदी जिसे पार करना था ब्रिगेडियर बीके पनवर और उनकी टीम को। तो कैसे हुआ ये? We started our minor operations. We went across, gained intelligence. We blew up some bridges. We got to know the intelligence network. We got to know where the Pakistanis are. And then there were these three rivers, the Yamuna, the Meghna and the Brahmaputra. All these rivers in that area did not have any bridges. People used to go, the train used to go up to the Ghat. Troops used to be transferred like Bhadrabad Ghat and Pulchari Ghat and go to the next district. We had to cross the Brahmaputra river. It's about 300 to 400 meters wide in that sector. We crossed it in fishing boats. All that planning was done. At about 10 kilometers east of Jamalpur, we crossed the river and went south on axis Jamalpur, Tangail, Dhaka. That was a roadblock was laid on night of 10th, 11th December. We were to launch an attack, but it so happened that we got information that Pakistanis are going to attack us. From 11:30 in the night to about 4:30 in the morning, 4.5 hours battle carried on. And all directions they tried to get in, and Pakistanis were killed. At afternoon, at about 2 o'clock news, the greatest story we heard on the All India radio by Lothika Ratnam, she announced that after a night-long battle of outwitting and outmaneuvering the enemy, the strategic town of Jabalpur has fallen to the Indian forces. Now the northern gates to Dhaka are open. And truly, the northern gates to Dhaka were open because there was no enemy. From Jamalpur to Tangail, there was some in Tangail, but beyond that, there's nothing. युद्ध वैसे तो बड़ा संघर्षपूर्ण होता है और उसकी चीजें हमेशा याद रह जाती हैं। The most remarkable thing is when people start clapping for you. And they were clapping for us when we were entering Bangladesh capital Dhaka. We all got together at the racecourse or visited the golf ground where Field Marshal, Chief of Army Staff General Manik Shaw came and he addressed us. He addressed the Darbar. I must tell you, what did he say? He says, हम आपसे बहुत खुश हैं। खुश इसलिए नहीं कि आपने लड़ाई जीता, वो तो आपका ड्यूटी था। खुश इसलिए क्योंकि आपने यहाँ के बाल बच्चों, यहाँ की औरतों, सिविल जनता को तंग नहीं किया और आप सही सलामत जैसा प्रिजनर ऑफ वॉर जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक करके लौट आए और अपना टास्क को पूरा किया एज ए गुड सोल्जर। एक खास मैसेज है ब्रिगेडियर बीके पनवर साहब का आपके लिए। I would say in the NDA, National Defence Academy, we were all one. We were soldiers. Duty is our religion. कर्तव्य हमारा धर्म है, and that is what we should follow. People should follow the nation's first philosophy. सबसे पहले क्या ये चीजें हमारे देश के लिए अच्छी रहेंगी? अगर नहीं तो फिर ये नहीं करना है. Be nation first, and then these other things come later in your family. बेटा जब युद्ध पे हो तो सबसे ज्यादा फिक्र माँ के दिल में होती है। बात करेंगे ब्रिगेडियर बीके पनवर साहब की माता जी से थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड। जय हो वीर तेरी
Red FM Guts and Glory. Salute 71. Honoring the war heroes. बेटा जब युद्ध पे हो तो माँ के दिल पे क्या बीतती है, ये सुनेंगे देविका पोनवर जी से, जो कि ब्रिगेडियर बी के पोनवर जी की माता जी हैं। मैं देविका पोनवर, हाँ, बहुत सौभाग्यशाली माँ हूँ मैं। हम लोगों को ये मालूम है कि ये सैनिक हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेन के डब्बे से उतार लेते हैं छुट्टी कि जाओ अभी लड़ाई शुरू हो गई। 21-22 साल के थे, बच्चे थे बिल्कुल। उस वक्त ये मीडिया भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, सिर्फ रेडियो को सुनते रहते थे पूरे समय। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मैप में देखते रहते थे और हमारी सांसें चलती थी, सिर्फ हमारी बॉडी शिथिल रहती थी। हम 24 घंटे सबके लिए प्रार्थना करते थे और सुनते थे। एक दिन टेलीग्राम वाला आया, मैं भुला नहीं सकती वो घड़ी को, मैं एकदम कांप गई। मैंने पोस्टमैन को बोला, मैंने कहा आप मत आओ। बोले नहीं आप घबराओ नहीं, मैं अच्छी रिपोर्ट लाऊंगा बाबा के लिए। बाबा बोलते थे इनको छोटे थे तो ऐसी घड़ी भी आती है कि हमने युद्ध जीत लिया, आपका बेटा अभी युद्ध जीत के बगैर किसी खरोच के तैयार है दूसरे युद्ध के लिए। तो फिर जो इनकी खबर आई, हमारे आनंद का ठिकाना नहीं था। ऐसा हमारा पुत्र, दिवाली पे हमारी दिवाली नहीं होती थी, दिवाली पे जब हमारा बेटा आता था तब हमारी दिवाली होती थी। इस माँ के अंदर कितनी पीड़ा भरी है हम बता नहीं सकते आपको, हम किसी को नहीं बताए आज तक। घर वालों की चिंता, खासकर माँ बाप की, वो एक अलग ही चीज होती है। वो कभी कभी उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां तक हम खुद नहीं सोच सकते। ये युद्ध की एक बहुत बड़ी बात तो बताना चाह रही हूँ आपको। एक बेटे का भरोसा, विश्वास अपनी माँ के लिए। वहाँ युद्ध में उनको एक जैकेट मिला दुश्मन का और उसमें कुछ पैसे, उन पैसों से उन्होंने अपनी माँ के लिए 19 रुपए की एक हैंडलूम साड़ी खरीदी और अपने झोले में रख ली। पूरे लड़ाई में वो साड़ी झोले में रखी रही। मैं सुन के बहुत हैरान हो गई कि कितना तगड़ा विश्वास था। वो साड़ी मेरे लिए अमूल है, उसका कोई मूल्य नहीं। जब वो साड़ी ये दूल्हा बने, मैंने ये साड़ी पहनी और इनको टीका करा और ये साड़ी को सहेज के मैंने एक सूटकेस में रखा हुआ है। मेरी अंतिम यात्रा के लिए ये साड़ी जाएगी। कोई करने वाला ऐसा बेटा नहीं है। ये खास मैसेज है, खासकर माताओं और महिलाओं के लिए देविका जी की तरफ से। जो इस प्रकार का बेटा मुझे ईश्वर ने दिया, तो ये मैं चाहूंगी कि हर माँ को ऐसा बेटा मिले। तो बेटियों को मेरा संदेश है, बेटियां अच्छी रहें, बिल्कुल शक्तिशाली हैं। जब बोलती हूँ तो मैं उनको देवियां ही बोलती हूँ। इस संसार की, इस पृथ्वी के, ये इस लोक की, ये सब ऐसा अनाचार क्यों हो रहा है, इसको रोको। ये संदेश है मेरा। ऐसे ही शूरवीरों और उनके परिवार वालों से बातचीत होती रहेगी। उसके लिए सुनते रहिएगा गट्स एंड ग्लोरी रेड एफएम पर।